Hi everyone, and this is second video on the continuation of yesterday's tutorial. In this video we will discuss P series and comparison test. Okay, so first of all let's define P series. Okay, so P series is from the family of infinite series. It's a series from the family of infinite series जिसमें आपके पास terms जो होती हैं they are reciprocal powers of natural number. So a general notation of P series would be this one. और आप कब कह सकते हैं कि this series is convergent and when will this series be divergent? तो उसके लिए we just locate the p value at the p value of P series. Okay, so if p is greater than 1, so the series is convergent, and if p value is not greater than 1, which is less than or equal to 1, so the series is divergent. ओके, सो जब भी कोई सीरीज़ हमें गिवन होगी एंड पी सीरीज़ हो वो, तो वी जस्ट नीड टू लोकेट द पी वैल्यूज़. अगर वो पी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो द रेलेवेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट. अगर द पी वैल्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, तो द सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट. ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स. Simple example would be summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n power 5. So if you look at the parent function, the general form of the p series, तो आप इससे p की वैल्यू निकाल सकते हैं कि the p value of this series would be 5, and 5 is greater than 1, so this series and summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n power 5 would converge. Okay, so this was very simple. Let's do another example. Summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n power of 10th root of 2. Okay, so its p value would be this thing. Okay, so we need to just solve this 10th root of 2. If this is greater than 1, so the series would be convergent, and if this is less than 1, the series would be divergent. Okay, so we know that 10th root of 1 is 1, and anything inside the 10th root which is greater than 1, so a result would be greater than 1. Okay, so if I say, let's say 10th root of 2, so this would always be greater than 1. Okay, so okay, so this is our p value is greater than 1. So I can say about this, what I can say about this series is that this series is convergent is the p value is greater than 1. So this converges. Okay, so let's do another example. Summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n to the power log of 0.001 to the base 10. Okay, इसमें आपके पास p की वैल्यू क्या होगी? That would be this thing. Okay, so you need to compute this log of 0.001 to the base 10. You can write this 0.001 as 10 power minus 3, and this would simplify to minus 3, which is less than 1. So our p value is less than 1, then our series summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n to the power log of 0.001 to the base 10, this diverges.
is, or p value is less than 1. Okay, so last two examples. Summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n multiplied by square root of n. Okay, so you can write this as summation from n is equal to 1 till infinity of 1 over n to the power 1, and square root n is n to the power 1 over 2. So this would equal to 1 over n to the power 1 plus 1 over 2, so that would be 3 over 2. Okay, so my p value is 3 over 2, which is 1.5 and greater than 1. So the series converges. Okay, last example. Summation from n is equal to 1 till infinity of n to the power minus 2 over 3. So what is the value of p over here? So remember, this is not equal to minus 2 over 3, क्योंकि p सीरीज़ में आपके पास 1 ओवर n टू द p होता है, n टू द पावर p, नॉट n टू द पावर p डायरेक्टली. ठीक है, इस चीज़ को कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखना. तो आई कैन राइट द above series is summation from n is equal to 1 till infinity of n to the power minus 2 और 3 है, तो उसको नीचे हम ले जाते हैं, तो that would be n to the power 2 over 3. Okay, so now my p value would be this value. Okay, so p value would be 2 over 3, which is less than 1, 0.666, which is less than 1. So our series diverges. Okay, so now we will move to comparison test. Okay, अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट में भी हम ये बता रहे होते हैं कि वेदर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ओके, तो कंपैरिजन सीरीज़ काम कैसे करती है कि लेट्स से आई हैव टू सीरीज़, summation of n is equal to 1 till infinity of a n, and the other one is summation of n is equal to 1 till infinity of b power b of n. Okay, so let's say I say that this series is greater than the series b of n is greater than the series summation of n is equal to 1 till infinity of a of n. ठीक है, तो if now what can I say is, what I can say is summation of n is equal to 1, summation of n is equal to 1 till infinity of b of n. If this series converges, so I can for surely say that summation of n is equal to 1 till infinity of a of n, this also converges. अच्छा, तो अगर हमारे पास जो बड़ी सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ हमारे पास बड़ी है, अगर हमारे पास बड़ी सीरीज़ ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो ऑब्वियसली उससे छोटी सीरीज़ ने तो कन्वर्ज ही करना होगा उसी किसी एक उसी फाइनाइट नंबर पे. ठीक है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ दिस सीरीज़ a of n, this diverges, तो I can for surely say that summation from n is equal to 1 till infinity of b of n, this also diverges. कि हमारे पास जो छोटी सीरीज़ है जो कि ये वाली है a of n, अगर ये भी डाइवर्ज कर रही है, इसका भी सम हमारे पास फाइनाइट नहीं आ रहा, तो जो बड़ी सीरीज़ है उसको तो ऑब्वियसली फाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो सारे टर्म्स जो होंगे वो ग्रेटर होंगे. ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट द बेसिक कंसेप्ट जो हम इसमें अप्लाई करेंगे. ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ओके, summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n square ln of n. Okay, so I can compare this in a term with
1 over n square, ठीक है. 1 over n square is more simpler. और मैं क्या कर सकता हूँ कि this is greater than the 1 over n square ln of n, because 1 over n square का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और उससे हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी एज ए रिजल्टेंट. ये वैल्यू छोटी है तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है. तो दिस इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर ln ऑफ n, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर ln ऑफ n इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर. अगर मैं दोनों को इन्वर्ट करता हूँ तो साइन वुड फ्लिप, तो दिस वुड बी जस्ट लाइक दैट, ठीक है. तो अच्छा, अगर हमारे पास जो ग्रेटर सीरीज़ है, अब हमें क्या करना है कि इसकी हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ईज़िली निकाल सकते हैं यूजिंग पी सीरीज़, ठीक है. अच्छा, अगर हम इसकी निकालना चाहें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, तो क्या होगी. पी वैल्यू इज़ 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो दिस सीरीज़ कन्वर्जेस. और हमारे पास ग्रेटर जो सीरीज़ है, जो बी ऑफ एन है, वो कन्वर्ज कर रही है. तो वो कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास ए ऑफ एन भी कन्वर्ज करेगी. तो जो छोटी सीरीज़ है वो भी ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी. जब हमारे पास बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, किसी फाइनाइट वैल्यू पे आ रही है, तो छोटी सीरीज़ है तो ऑब्वियसली फाइनाइट सीरीज़ पे आना है, तो फाइनाइट वैल्यू देनी है सम की. तो दिस आल्सो कन्वर्जेस. ओके, another example which is summation of n is equal to 1 till infinity of n power 5 plus 2n square plus 1 divided by n square. Okay, so a simpler series would be जिसके साथ मैं इसका comparison कर सकता हूँ, that would be n power 5 or n square, sorry the sign would flip out, and this would be greater than दिस सीरीज़. ओके, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे है n पावर 5 प्लस 2 पावर n प्लस 1, उसका नोमिनेटर ग्रेटर है कंपेयर टू द राइट साइड, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाली जो है वो ग्रेटर टर्म है, ठीक है. अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस निकालना ईजी है, ठीक है. कैसे कि इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि summation of n is equal to 1 till infinity of n power 5 divided by n power 2, that would be equal to n is equal to 1 till infinity of n power 3, ठीक है. और इसको हम अगेन इस तरह लिख सकते हैं n is equal to 1 till infinity of 1 over n power minus 3, और p की वैल्यू है -3 which is less than 1, तो this series n is equal to 1 till infinity of 1 over n की power -3, or I can just simply write it as n power 3. This diverges because p value is less than 1. तो जो छोटी सीरीज़ है ये वाली, ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, वो ये हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, ये भी, इसका भी हमारे पास फाइनाइट सम नहीं आ रहा, तो बड़ी सीरीज़ जो है उसका तो ऑब्वियसली उससे भी बड़ा सम आएगा, तो वो तो ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगी. तो what I can say about this is n power 5 plus 2n square plus 1 divided by n square, this also diverges. Okay, let's do some more examples. The summation of n is equal to 1 till infinity of ln of n divided by n cube. अच्छा, इसको मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ. एक कंपैरिजन तो ये हो सकता है कि मैं इसको कंपेयर करूँ n इज़ इक्वल टू 1 ऑफ ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n क्यूब. इसको मैं कंपेयर करूँ इस सीरीज़ से 1 ओवर n क्यूब, और इसमें ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा है. और दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है कि summation of n is equal to 1 till infinity of ln of n divided by n cube, और इसका कंपैरिजन हो सकता है n over n क्यूब से भी.
ठीक है। और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, नोमिनेटर में एक में ln आ रहा है और एक n आ रहा है, तो n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ln ऑफ n, तो दिस वुड बी ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड। ओके, अच्छा, अगर मैं लेफ़्ट साइड वाली लेकर चलूँ, लेफ़्ट साइड पे जो मैंने कंपैरिजन किया है, तो इसको कंप्यूट करना इजी है। p की वैल्यू 3 है, तो व्हाट आई कैन से अबाउट दिस सीरीज इज़ के 1 ओवर n क्यूब दिस कन्वर्जेस। ओके, तो हमारे पास छोटी जो सम है वो कन्वर्ज कर रही है, बड़ी जो सीरीज़ है वो अब कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। तो इस केस में हमारा जो टेस्ट है वो इनकन्क्लूसिव है। हमारे जो कंपैरिजन टेस्ट है इस केस में हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई रिज़ल्ट पे हम नहीं आ रहा है। अगर हम जो राइट साइड वाला कंपैरिजन है उसको हम देखें, तो इसको कंप्यूट करना इजी होगा। दैट वुड बी समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ n ओवर n क्यूब इज़ 1 ओवर n स्क्वायर, और p की वैल्यू जो है वो 2 होगी विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो दिस सीरीज़ कन्वर्जेस। ओके, सो दिस सीरीज़ कन्वर्जेस। जो बड़ी सीरीज़ है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, तो छोटी ने तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करना है। जो हमारे पास जो छोटी सीरीज़ है, समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी, जो हमारे पास छोटी सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। ओके, सो ये कंपैरिजन करने से हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, और ये कंपैरिजन जो राइट साइड पे हमें किया उससे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो कंपैरिजन में भी आपने केयरफुली देखना है उसको। अच्छा, another example is summation of n is equal to 1 till infinity of n plus 1 over n square। ओके, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ n ओवर n स्क्वायर। ठीक है, और चूँकि लेफ़्ट साइड का नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नोमिनेटर लेफ़्ट साइड का बड़ा है, तो आई कैन राइट दैट इज़ द लेफ़्ट साइड इज़ ग्रेटर देन द राइट साइड। ठीक है, और इसको कंप्यूट करना इजी होगा, तो आई कैन राइट दिस इज़ समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ n ओवर n स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन इज़ 1 ओवर n, और चूँकि ये भी पावर सीरीज़ है, p सीरीज़ है सॉरी, तो p की वैल्यू 1 आ गई, और जो कि नॉट ग्रेटर देन 1 है, जो कि 1 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारे पास ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। द सीरीज़ समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ 1 बाय n, दिस डाइवर्जेस। जब हमारे पास ये छोटी वाली सीरीज़ ये डाइवर्ज कर रही है, तो उससे जो बड़ी सीरीज़ होंगी उसने तो ऑब्वियसली डाइवर्ज ही करना है। तो व्हाट आई कैन से अबाउट माय सीरीज़ इज़ दैट दिस सीरीज़ आल्सो डाइवर्जेस। ओके, तो हमारे पास जब छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है उसका समय हमारे पास फाइनाइट नहीं आ रहा, तो उससे जो बड़ी सीरीज़ होगी उसका तो ऑब्वियसली फाइनाइट नहीं आएगा, उसका तो उससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, okay, last two examples। okay, so summation from n is equal to 1 till infinity of 1 divided by n square root of n plus 1। okay, so I can compare this series with n is equal to 1 till infinity of n square root of n। चूँकि लेफ़्ट साइड वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी जो वैल्यू है वो छोटी आएगी, और राइट साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है, +1 नहीं हो रहा उसके साथ स्क्वायर रूट में, तो राइट साइड का डिनोमिनेटर छोटा है, आउटपुट हमारे पास बड़ी आएगी, तो दिस वुड बी द राइट साइड वुड बी ग्रेटर देन दिस वन। ओके, इसको कंप्यूट करना इजी होगा, और आई कैन राइट दिस इज़ n into n की पावर 1/2, अगेन 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा, और p की वैल्यू जो है 3/2 आ गई। तो हमारे पास जो सीरीज़ है
series summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n square root n ये कन्वर्ज कर रही है। ओके तो जब हमारे पास बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, जो बड़ी टर्म्स हैं उनका सम हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू पे आ रहा है, उससे जो छोटी वैल्यू आएंगी उसका तो उससे भी छोटा आएगा, मतलब फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो आई कैन से व्हाट दिस इज़ 1 over n square root of n plus 1. This also converges. Okay, last example, there is summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n to the power 2 plus 1 over n. Okay, so I can compare this with series summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n square. Okay, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास n की कोई पावर आ रही थी। लेट से हम इसको यूँ लिख सकते हैं मैथमेटिकली, n पावर 2 plus 1 by n इज़ ग्रेटर देन n पावर 2। ठीक है, उसके साथ पावर में 1 over n भी ऐड हो रहा है, और n की वैल्यूज़ चूँकि ऑलवेज़ पॉजिटिव, 1 over n की वैल्यूज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव होंगी, तो लेफ़्ट साइड वाली जो टर्म है हमारे पास ग्रेटर होगी। तो हम इसका अगर इन्वर्जन ले लें, इसको इन्वर्ट कर लें, तो 1 over n पावर 2 plus 1 over n साइन फ्लिप हो जाएंगे, तो 1 over n स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास जो राइट साइड वाला है वो ग्रेटर है। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वाले का डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ज़्यादा है, 2 प्लस समथिंग हो रहा है जो कि पॉजिटिव है, और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ n स्क्वायर आ रहा है। ओके, सो आई कैन कंप्यूट दिस इज़ summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n square. p की वैल्यू है 2 which is greater than 1, तो my series converges. ओके, दिस थिंग कन्वर्जेस, जो हमारे पास ग्रेटर सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। तो लेफ़्ट साइड पे जो उससे छोटी सीरीज़ है वो तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। नो, इट्स द अदर वे अराउंड, कि हमारे पास जो बड़ी सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है इससे, जो छोटी सीरीज़ है उसमें तो ऑब्वियसली उससे भी छोटा सम देना है, तो वो भी कन्वर्ज करेगी। तो द समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 ऑफ n टू द पावर 2 plus 1 by n, दैट इज़ ऑल्सो ओके, ये भी दैट ऑल्सो कन्वर्जेस। Okay, that's it for this video. Thank you.